We will carry on where we stopped in the previous week. पिछले हफ्ते हम जा रुके थे, वहीं से आगे चलेंगे. In the last few weeks, we're looking at the different manifestations of the Holy Spirit or gifts of the Holy Spirit. पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं जो पवित्र आत्मा जी के जो दान हैं उनके बारे में मनन कर रहे हैं. We spoke about prophecy, हमने भविष्यवाणी के ऊपर बात करी, discernment, परखने वाली आत्मा की बात करी, wisdom, बुद्धि की बात करी and faith. और विश्वास की बात करी. Now, why does God give these gifts to His children? तो परमेश्वर ये जो दान है अपने लोगों को क्यों देता है? It's not for us to show off or to flaunt our gifts. ये इसलिए नहीं कि हम अपने दानों को दिखावा करें और सबके सामने उसको प्रकट करें. It's for us to be a blessing to people. पर ये इसलिए है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने. In 1 Corinthians 12 chapter, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 8 to 10 identifies 9 manifestations of the Holy Spirit or 9 gifts. 8 से 10वीं आयत में हम जो 9 आत्मा के जो दान हैं उनके बारे में हम देखते हैं. We look at from verse 4 onwards. और अगर हम चौथी आयत से आगे देखते हैं, Paul writes, पौल ऐसे लिखते हैं, the manifestation of the Spirit is given for the common good. वरदान तो कई प्रकार के हैं आत्मा के और ये लोग सबके भले के लिए दिए गए हैं. It's for the people around us, for us to be ministering to them and be a blessing to them. और ये इसलिए है कि हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके लिए आशीष का कारण बन सके. And then Paul writes, there are different kinds of gifts, but the same Lord. और फिर वो कहता है कि different kinds of gifts, but the same Spirit. वो कहता है सेवा तो कई प्रकार की है परंतु प्रभु जो आत्मा है वो एक ही है. Different kinds of service, but the same Lord. अलग अलग सेवका ही है पर प्रभु एक ही है. Different kinds of working, same God works all of it in all men. और एक ही परमेश्वर है और एक ही आत्मा जो लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से काम करता है. The 7th verse says that this manifestation is given for the common good. 7th verse, not the 4th verse. और 7वें आयत में लिखा है ये सबके लाभ के लिए है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए है. So the first 3 verses, 4, 5, 6, actually talk about gifts from the Holy Spirit. और 4, 5 और 6 आयत में हम देखते हैं आत्मा के जो दान की ओर से जो दान है उसके बारे में पढ़ते हैं. Different kinds of service, but the same Lord. अलग अलग सेवका ये प्रभु एक ही है. But different kinds of working, but same God works all of it in all men. और सब में का प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है. Now the Lord gave a very simple formula for people to recognize who is His children are, true children are, who are the false children, the false people of God. और परमेश्वर ने एक बड़ा सीधा साधा सा फॉर्मूला बताया कि कौन परमेश्वर के लोग हैं और कौन परमेश्वर के लोग नहीं हैं. Not false people of God, but false people pretend to be Christians. और ये झूठे लोग हैं और मसीह बनने का दिखावा दिखाते हैं, करते He said, you will know them by the fruit. और वचन लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे. Now the Lord gave a simple formula. We'll be recognized by the fruit we bear in our lives. और हम किस तरह के फल लाते हैं उससे हम लोग हमारे को पहचान सकते हैं. And for that, many Christians do not understand the gifts of Spirit. They say we don't need the gifts. What we need is the fruit. और बहुत से लोग जो है ये आत्मा के फलों की बात में लोग कहते हैं हमें आत्मा होनी चाहिए, फल हमारे को नहीं चाहिए. No, they say the gifts are not important. Fruit is important. अच्छा, वो कहते हैं ये दानों की जरूरत नहीं है, कि इतनी अहमियत नहीं है, पर जो फल है वो बड़े उनकी अहमियत है. And they even against the gifts of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के जो दान है उसके भी विरोध में रहते हैं. They will say that it's all in the first century, not today. और वो कहते हैं तो पहली शताब्दी की बातें हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है. But 13th chapter of 1 Corinthians, verse 8 talks about, no doubt it talks about tongues will be still, prophecy will cease, and knowledge will pass away. और वो कहता है कि प्रेम भविष्यवाणियां हैं वो रुक जाएंगी. और वर्स 8 ब्रदर. Yeah, verse 8 talks about prophecy will cease, tongues will be still, and knowledge will pass away. हाँ, प्रेम तो कभी टलेगा नहीं, भविष्यवाणियां वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान है वो भी मिट जाएगा. When will that happen? That will happen. Christ comes a second time. और ये कब होगा? जब प्रभु दूसरी बार आएंगे. And Paul goes on to say, now we see a poor reflection, then we will see face to face. और पौलुस कहता है कि अभी तो हम धुंधला सा देखते हैं, बाद में हम इसको आमने सामने देखेंगे. Then means the second coming of Christ. और वो जो समय उसकी बात हो रहा है वो है जब प्रभु दूसरी बार आएंगे. Till the second coming of Christ, there is a desperate need for people to know who God's people are, learn from them, and turn to Christ and be saved. उस समय तक ये बहुत जरूरी है कि लोग प्रभु के लोगों को पहचानें, उनसे सीखें और बच जाएं. Now, the 4 gifts I spoke about in the last few weeks, 3 of them are vital for us to bear the fruit.
और अब तक हमने जो चार जो दान देखे उसमें से तीन बहुत जरूरी है कि हम ये फलवंत हमारा जीवन हो। The gift of prophecy is for edification of other people. Of Christians. भविष्यवाणी का जो वरदान है ये दूसरे लोगों की प्रोत्साहन के लिए, बढ़ोतरी के लिए है। It's for exhortation, strengthening, and comfort. और वो लोगों का प्रोत्साहन देना, उनको मजबूत करना, उनको सहानुभूति देने के लिए। 1 Corinthians 14 chapter verse 3. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 3री आयत। But other three gifts I spoke about, और उसके बाद जो बाकी के जो तीन दान की बात करी हमने, faith, wisdom, and discernment, बुद्धि, विश्वास और परखने वाली आत्मा, are all gifts of the Holy Spirit, और ये भी पवित्र आत्मा के वरदान हैं, which enable us to bear the fruit of the Spirit. और ये इसलिए दिए गए हैं कि हम आत्मा के फल ला सकें। Only one fruit एक ही फल है with 9 qualities. और उसके 9 गुण हैं। And in fact, if you look at these 4 gifts I spoke about, out of 4, 3 are important for the fruit. These 3 gifts enable us to bear the complete fruit of the Spirit. और इसमें जो तीन हमने जो दान देखे, वो तीन दान बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो आत्मा के फल के सारे गुण वाला फल है वो हमारे जीवन में से आए। It's important to realize that it's not fruits of the Spirit, but fruit of the Spirit. और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि आत्मा के फल कई फल नहीं है, एक ही फल है। One fruit with 9 qualities. एक फल है, उसके 9 गुण हैं, 9 characteristics. उसके 9 उसकी खूबियां हैं। What are these 9 qualities? 9 खूबियां क्या हैं? Love, joy, peace, प्रेम, मेल और शांति, patience, kindness, goodness, और विश्वास, संयम, धीरज। The Saim comes in then, self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और इसके साथ जो है और ये मैं 9 के 9 एक साथ पढ़ता हूँ: प्रेम, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, धीरज, आनंद और शांति। So out of these 9, God wants all 9 to be seen in our life, or 9 qualities. और परमेश्वर चाहता है कि ये 9 के 9 गुण जो है हमारे जीवन से प्रकट हो। It's a fruit of the Spirit. ये आत्मा का फल है। It's not fruit of the Christian. ये मसीह का फल नहीं है। The fruit of the Spirit which is seen in a Christian. और ये एक मसीह के अंदर आत्मा के फल हैं, ये फल के गुण हैं, ये दिखाई देने चाहिए। Who bears the fruit in our lives? The Holy Spirit. और ये फल हमारे जीवन में कौन लाता है? ये पवित्र आत्मा जी लाते हैं। They live a life led by the Spirit and receive the gifts of the Spirit. In time, we will be spectators in the fruit be seen in our lives. और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार इन फलों के इस विश्वास ये आत्मा के जो वरदान उसके नाम से जीवन बिताते हैं, तो समय के अनुसार ये फल के गुण जो हैं ये भी हमारे जीवन में से दिखाई देते हैं। So 9 different qualities, but only 3 gifts for bear the 9 qualities of the fruit. ये 9 गुण हैं फल के, पर इन फलों को पाने के लिए 3 वरदान हैं जो जरूरी हैं। I'm going to classify this 9 gifts into 3 categories. और इन 9 फलों को हम 9 गुणों के फल के जो गुण हैं इस फल के, उसको हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। And we're going to see how each of these 3 gifts I'm going to speak about are responsible for each category of the fruit. और देखेंगे कैसे ये वरदान जो है, 3 वरदान जो है, कैसे ये 3 जो गुणों के जो भाग हैं उसमें कैसे ये 3 गुण हम जो उसमें ये कैसे साबित होते हैं। 9 qualities can be divided into 3 categories. और ये 9 फलों के जो फल के जो गुण हैं 9, उसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। The first category is peace and joy. पहला है आनंद और शांति। Second category is love, patience, goodness, love, kindness, goodness, gentleness. और दूसरा है प्रेम, मेल, कृपा और भलाई। And third category is wisdom, not wisdom. The third category is faith, patience, self-control. और तीसरा जो इसका गुण भाग हो जाता है वो विश्वास, संयम और धीरज। Let me repeat. First category is peace and joy. पहला जो भाग है उसमें आनंद और शांति है। Second category is love, goodness, kindness, gentleness. और जो दूसरा भाग आ जाता है वो प्रेम, मेल, कृपा और भलाई। And third category is patience, faithfulness, and self-control. और जो तीसरा गुण हो जाता है वो है धीरज, संयम और विश्वास। Now we're going to see which of these gifts are important for each of these categories. और हम देखेंगे ये जो वरदान है ये कौन से भाग के लिए, इन फलों के कौन सा किसके लिए मेल खाता है। Now for peace and joy, one condition for peace and joy is obedience. और आनंद और शांति की जो बात करें तो उसका सबसे जरूरी एक बात है विश्वास योग्यता।
And for us to preserve the peace and joy God has given us, we must obey Him consistently. अगर हमारे अपने जीवन में आनंद और शांति जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको बनाए रखना है तो बहुत जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर की आज्ञा मानते रहें. And for that to happen, we should be a people who seek faith from God. और ऐसा होने के लिए हम ऐसे लोग होने चाहिए जो परमेश्वर से विश्वास मांगे. Because obedience or joyful obedience comes from faith. क्योंकि आनंद के साथ आज्ञाकारिता जो है वो विश्वास के द्वारा से आती है. Romans chapter 1, chapter 1 verse 5 talks about obedience comes from faith. रोमियो पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जो आज्ञाकारिता है विश्वास से आती है. And this obedience that comes from faith is joyful obedience. और ये जो ऐसी जो आज्ञाकारिता आती है ये बड़े आनंद के साथ खुशी के साथ आज्ञा मानना होता है. In 1 John chapter 5, 3, 4 and 5, John writes, और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 से लेकर 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं. This is love for God to obey His commandments. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने. And His commandments are not burdensome because everyone born of God overcomes the world. और उसकी आज्ञा कठिन नहीं क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. This is victory overcomes the world, even our faith. और यह विजय जिससे संसार पर हम जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है. Who is the one who overcomes the world? He believes that Jesus is the Son of God. संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. One of the gifts of Holy Spirit is the gift of faith. We explained last time how this gift of faith is over and above our measure of faith. और ये हमने पिछले हफ्ते देखा था ये कैसे ये जो आत्म विश्वास का वरदान है ये हमारे विश्वास से और बड़ा वरदान परमेश्वर की ओर से और विश्वास मिलता है उसकी हम बात करें. So when the temptation comes, we hold on to faith that God gives us and resist temptation by faith. और जब परीक्षा आती है कोई तो हम उस विश्वास को जो परमेश्वर हमें देता है उसके द्वारा से उसका सामना कर सकते हैं. And when temptation comes, we normally look at who's watching, who's going to know, but God is watching. By faith, we know everything He's watching. हमारे पास जो कोई प्रलोभन आता है तो हम सोचते हैं अरे हमें कौन देख रहा है, पर हम विश्वास से जानते हैं कि हमारा प्रभु हमें देख रहा है. And therefore, when we don't see God, but we know He sees us by faith in the Word of God. हम तो परमेश्वर को नहीं देखते पर हम विश्वास से जानते हैं, परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि वो हमें देख रहा है. And therefore, by faith, we realize that we could displease God by disobeying, and therefore we avoid temptation. और हम विश्वास से जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे तो उसको दुख होगा और इसलिए हम उस परीक्षा को का सामना करते हैं, उसको हटा देते हैं. Specifically, how do you look at temptation? हम इस प्रलोभन को किस तरह से देखते हैं? When temptation comes, there are two possibilities. अगर कोई परीक्षा आती है तो उसके दो तरीके से हम उसका सामना कर सकते हैं. Either we yield to it or we don't yield to it. या तो हम परीक्षा में गिर जाएं या परीक्षा में ना गिरें. Either we obey God or we disobey God. या परमेश्वर की आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा ना माने. When we yield to temptation, from the time we sin till the time we repent, the devil accuses us before the Father in heaven. और जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं और जब तक हम उसका पश्चाताप नहीं करते तब तक शैतान जो है हमारे को परमेश्वर के सामने हमारे पर दोष लगाता रहता है. Revelation chapter 12 verse 10 tells us that. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है. We don't see devil accusing us before the Father, but by faith in the Word of God, we know that's what is happening. हम शैतान को परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाते हुए नहीं देख सकते, पर हम विश्वास से परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि वो ऐसा कर रहा है. On the other hand, when we say no to temptation, और दूसरी तरफ जब हम परीक्षा को ना कह देते हैं, something else happens in the heavenly realms. तो स्वर्ग में भी एक और चीज होती है. स्वर्ग में Luke 15:10 says, the rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. और लूका 15 उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है स्वर्गदूतों के सामने. We believe this by faith. We don't see angels rejoicing, we don't see devil accusing, but by faith in the Word of God, we know this is what's going to happen. और हम ये स्वर्गदूतों का आनंद करते हुए या शैतान को दोष लगाते हुए नहीं जानते, पर हम विश्वास से जानते हैं कि ऐसा हो रहा होगा. So if we love God, what do you want to happen in the heavenly realms? तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि स्वर्ग में हमारे परमेश्वर के स्वर्ग हमारे लिए क्या हो वहां पे? Do you want the devil to accuse us before the Father, or you want the angels to rejoice in heaven? क्या आप चाहेंगे कि शैतान परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाए या सारे स्वर्गदूत हमारे कारण से स्वर्ग में आनंद करें? We want to obey God. हम परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं. And we also realize by faith that when temptation comes, is because we have the strength to face it. That's why it has come. और हम ये जानते हैं कि जब परीक्षा आती है तो हमारे पास जो विश्वास है उसका सामना करने के लिए इसलिए ये परीक्षा आई है. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says,
पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, God is faithful. He won't allow you to be tested more than you can bear. और परमेश्वर जो है वो सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। He won't allow us to be tempted more than we can bear. और हमारे को कभी भी हमारी सहने से ज्यादा परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। With every temptation way, they can stand up. और जब भी कोई परीक्षा आएगी तो उसके साथ निकास भी देगा। Even that we believe by faith. और ये भी हम विश्वास से ही इस पे भरोसा करते हैं। And we seek God's strength at that point of time to turn from sin, to say no to temptation. और हम परमेश्वर की सामर्थ से उस परीक्षा के सामने उस समय उसको ना कह सकते हैं। That's why Christian life is by faith. Christian obedience is by faith. इसलिए मसीह जीवन जो है विश्वास से है और उसकी आज्ञाकारिता भी विश्वास से ही है। When we walk in obedience, we preserve the peace and joy He has given us. जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो शांति और आनंद जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम बनाए रखते हैं। In the world, we'll have difficulties, but then we'll have the peace and joy because we're obeying God. संसार में हमारे को समस्या आएगी, पर हमारे पास शांति और आनंद बना रहेगा क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ मिली है, उसकी आज्ञा मानते हैं। In John 16:33, Jesus says, I've told you these things, that in me you will have peace, in the world you will have troubles. यूहन्ना 16:33 में पढ़ते हैं, बातें मैंने तुमसे, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। In John 15:11, he says, I've told you this, that my joy will be in you and the joy will be complete. और यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So, independent of circumstances, difficult circumstances or fine circumstances, when you obey God, we manifest peace and joy. तो चाहे परिस्थिति कैसी हो, कठिन हो, सरल हो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर के इस शांति और आनंद को प्रकट करते हैं। And to obey God consistently, we need faith from God. और परमेश्वर की आज्ञा लगातार मानने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से विश्वास चाहिए। I shared with you when I spoke on faith as the gift of Spirit that this gift of Spirit, faith, is a surge of faith given to us at a point of time when we need that faith. और विश्वास की वरदान की जब बात कर रहे थे तो भाई ने हमें बताया था कि कैसे जब हमारे को जरूरत होती है परमेश्वर अपनी ओर से बड़ी जोर से हमारे अंदर विश्वास का एक प्रवाह देते हैं कि हम उस परीक्षा का सामना कर सकें। Is given to us by the grace and mercy of God at the point of need. और परमेश्वर का अनुग्रह और दया से जब हमारे को जरूरत होती है उस समय परमेश्वर ही ये विश्वास हमें देते हैं। Sometimes we wonder when certain people go through temptation and come out successfully, we wonder, Lord, if I had the temptation, will I be able to face it like the way this person faced it? और कई बार हम देखते हैं कई लोग परीक्षा में गिरते हैं और पढ़ते हैं पर उसमें से बड़े सफलता से निकल के आ जाते हैं, तो हम अपने आप से पूछते हैं, प्रभु अगर मेरे सामने ऐसी परीक्षा आई तो क्या मैं भी इस तरह से सामना कर पाऊंगा? Don't worry about it. If you don't have faith for that, if it doesn't happen to you now, it's because you don't have that faith, maybe strength, maybe. When it happens to you, you'll have the strength. That point of time, God give you the gift of faith, as mentioned in 1 Corinthians 12 chapter, verse 9. और पहला कुरिन्थियों 12:9 में हम पढ़ते हैं कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी, अगर वो परीक्षा नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि हम अभी उस परीक्षा के सहने के लिए हमारे पास विश्वास नहीं है, और जब परमेश्वर ऐसी परीक्षा आएगी तो परमेश्वर उस समय हमारे को विश्वास देगा सामना करने का। Don't imagine your response to particular temptation before it happens. अपने पहले ही कल्पना ना करने लगे ये परीक्षा आएगी, ये समस्या आएगी, इससे पहले कि वो हो। When the temptation comes, ask God for faith and strength to face it, and you'll come out successfully. और जब परीक्षा आए तो परमेश्वर से सहायता मांगे, सामर्थ दे परमेश्वर, और आप उसमें से सफल से निकल आएंगे। So what do we practically do when we either face temptation and we either say yes to it or no to it? तो हम जब परीक्षा हमारे पास आती है तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो उसको हाँ कह सकते हैं या उस परीक्षा का हम सामना कर सकते हैं। If I happen to yield to temptation, immediately I go to Jesus. Immediately I don't waste time. Immediately I say, Lord, forgive me and I repent of this. अगर मैं उस परीक्षा में गिर जाता हूं तो मैं समय बर्बाद नहीं करता, एकदम से प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती होगी। Thank you, Lord, for interceding for my sins. तो प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। Now devil accuses before the Father, और शैतान जो है पिता के सामने हम पे दोष लगाता है, and Jesus defends us before the Father. और प्रभु यीशु मसीह हमारे को बचाता है पिता के सामने। In 1 John chapter 2 verse 1, it's written, John writes, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी पहली आयत में यूहन्ना ऐसे लिखते हैं, "Dear brothers, I write this to that you not sin. हे बालकों, मैं ये बातें इसलिए नहीं लिखता कि तुम पाप ना करो, But if anybody does sin, we are one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one." पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह।
He's a defense advocate before the Father. वो हमारी तरफ से लड़ने वाला, हमारी सहायता करने वाला वकील है। And the moment you yield to temptation, immediately go to Jesus and say, Lord, thank you for your forgiveness, Lord, thank you for your blood. I repent of my sin, Lord, don't hold the sin against me. और जैसे हमसे कुछ पाप होता है, गलती होती है, हम पिता के पास जाएं, समय बर्बाद ना करें और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे अपने लहू से, अपने प्रेम से मुझे धो के शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर दे। And Christ defends us before the Father. और प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हमारी सहायता करते हैं। All this we believe by faith in God's word. We don't see this thing happening. और इस चीजों को हम होते हुए नहीं देखते, इन सब चीजों को विश्वास करते हैं वचन के अनुसार और इस पे विश्वास करते हैं। It's like a court case when we are under trial. There's accuser and the defense. जैसे कोर्ट का केस होता है, उसमें एक दोष लगाने वाला होता है, एक बचाने वाला होता है। And Christ's only argument for a defense is his blood. और प्रभु यीशु मसीह का जो बचाने का एक ही जो उसकी बहस का वो करता है, वो ये है कि उसका लहू है। What will the judge do? तो जो न्यायाधीश है वो क्या करेगा? The judge will vacate the judgment seat. जो न्यायाधीश है वो न्याय की कुर्सी को छोड़ देगा। Who will occupy that seat? और उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? The defense advocate. जो बचाने वाला वकील है वो उस कुर्सी पे बैठेगा। John 5:22 says, the Father judges no one. He enters all judgment to Son. The all belong to the Son and the honor of the Father. यूहन्ना 5:22 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु लिखा है कि परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, उसके पुत्र को वो न्याय करने का हक अपने पुत्र को देता है। What will happen in a court case when the defense advocate becomes judge of the same case? अब जो बचाने वाला वकील है वो उस केस में क्या करेगा जब जो बचाने वाला है वही अगर न्यायाधीश बन जाता है तो? There's no condemnation. We are acquitted. तो हमारे पे तो कोई दोष ही नहीं लगेगा, हम जो है माफ हो जाएंगे, छूट जाएंगे। That's why Romans 8 chapter verse 1 says, इसलिए रोमियो 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, there's therefore no condemnation for those in Jesus Christ, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, who walk not according to flesh but according to the Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। For the law of the Spirit of life has set me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Today, Jesus is interceding for us. आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ का काम करते हैं। There's no condemnation for us, no guilt for us. हमारे लिए कोई दोष नहीं है, कोई गिलानी नहीं है। Hebrews 7:25 says, इब्रानियों 7 उसकी 25वीं आयत में लिखा है about the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So it's all by faith. ये सब बातें विश्वास से होती हैं। That's why obedience is a joy. That's why because of obedience we preserve the peace and joy of the Lord. और इस तरह से आज्ञा मान के हम परमेश्वर की ये शांति और आनंद है उसको अपने जीवन में बनाए रखते हैं। The first category of peace and joy is worked out through faith, and as we obey God by faith, we manifest peace, preserve the peace and joy. और ये जो शांति आनंद है ये है परमेश्वर का वरदान जो हमारे को विश्वास है उससे मिलता है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं विश्वास से तो ये आनंद और शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। The second category is four qualities. और जो दूसरा भाग है उसके 4 गुण है उसमें। Love, kindness, goodness, gentleness. प्रेम, मेल, कृपा और भलाई। Kindness, goodness, gentleness actually is humility, meekness. और जो नम्रता है ये गुण है, ये भी एक गुण है। In fact, kindness and goodness all combined with meekness, which is basically humility. और ये नम्रता, दीनता, भलाई जो है ये एक ही गुण बन जाता है। They're all expressions of love. Love is the main quality. When you have love, you manifest kindness, goodness, gentleness. और ये सब प्रेम के ही भाग हैं, प्रेम के ही गुण है। जब हम प्रेम करते हैं तो ये हम अपने जीवन से प्रेम, मेल, कृपा, भलाई जो है ये हमारे जीवन से प्रकट होने लगती है। When you have the love of God, you won't be proud, you won't boast. जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो हम घमंड नहीं करेंगे। For example, 1 Corinthians 13 chapter from verse 4. उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत से हम पढ़ते हैं। Love is patient. प्रेम धीरजवंत है। Love is kind. प्रेम और कृपालु है। Does not envy, does not boast, is not proud. प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है। Look at all the qualities of love. You'll find this goodness, kindness, gentleness are all effects of love, the outflow of love. तो हम देखते हैं कि ये जो कृपा है, मेल है, भलाई है, ये सब प्रेम के ही भाग हैं, प्रेम से ही निकलते हैं।
The overall umbrella is love, and these are all manifestations of love. और जो ऊपर का बड़ा छतरी है वो प्रेम है, और उसके नीचे की ये सारे प्रकट होने वाले प्रेम के द्वारा से जो होते हैं वो बाकी गुण ये है वो नीचे है। How do we grow in love? हम प्रेम में बढ़ते कैसे हैं? How do you love people more and more? How do you love enemies more and more? हम लोगों को कैसे प्रेम करते हैं ज्यादा ज्यादा? हम अपने दुश्मनों को और कैसे कैसे ज्यादा प्रेम करते हैं? Through our knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा से। God is love. 1 John 4:16 says God is love. पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। As we grow in the knowledge of God, we'll have the love of God. और जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर बढ़ेगा। To know Him more and more, we need one particular gift of the Holy Spirit. और परमेश्वर को और अधिकाई से जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा का एक दान की बड़ी जरूरत है। It's a gift of discerning of spirits, distinguishing between spirits. और ये है आत्माओं के अंदर क्या भिन्नता है उसको पहचानने का गुण। 1 Corinthians 12 chapter verse 10 talks about the gift of or discerning of spirits, distinguishing between spirits. पहला कुरिन्थियों 12:10 में हम पढ़ते हैं कि ये जो दान जो है पवित्र आत्माओं को पहचानने का क्या फर्क है आत्माओं में, उसको पहचानने का गुण। We hear so many voices coming to us. हम बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं जो हमारे पास आती हैं। From the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा से आती हैं। from the evil spirit, दुष्ट आत्मा की भी आवाज आती है। from our own spirits, हमारी अपनी आत्मा की भी आवाज होती है। and the delusions of our own minds. और हमारे मन के भ्रम से भी ऐसा आवाज सुनाई देती है। When you have this gift of discerning between spirits, you can understand, you can recognize and filter out everything else and keep only the voice of God, the will of God. अगर हमारे अंदर परखने वाली आत्मा होगी तो हम बाकी सारी आवाजों को अलग कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को ही सुन के उसके पीछे चल सकते हैं। Will correctly divide the word of truth. और ये परमेश्वर के वचन को जो सच्चाई है उसको एक बिल्कुल सही तरीके से बांट सकते हैं। It's very important for us to correctly divide the word of truth. और सच्चाई का जो वचन है उसको बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से उसको बांटें। This is what the Apostle Paul exhorted Timothy to do. और यही पौलुस ने तिमोथी को बोला करने के लिए। 2 Timothy 2:15. दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत। Do your best to present yourself to God as one approved. और अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न कर। A workman doesn't be ashamed, but who correctly divides the word of truth, correctly handles the word of truth. जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। What do I mean by that? और इसका क्या मतलब है? Dividing the word of truth. परमेश्वर के वचन को बांटना या ठीक से काम में लाना। Is for us to know what is for the Old Testament time. ये बात समझना कि पुराने नियम के लिए क्या बातें महत्व रखती हैं। What are the dictum at the time Christ walked this earth? और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे उस समय क्या बातें जरूरी थी? And what is now after the cross? और अब क्रूस के बाद जो है उसके लिए हम उसमें उसके लिए क्या बातें हैं? Old Testament time, the norm was eye for an eye, tooth for a tooth. पुराने व्यवस्था के समय में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत था। And that's why the psalmist is very often asking God to punish the enemies, kill them, slaughter them. इसलिए भजन लिखने वाला भी कई बार कहता है मेरे दुश्मनों को नाश कर दे, उनको मार दे, काट दे। We can't do that today. पर हम ऐसा आज नहीं कर सकते। Because those days law, today is grace and truth. उस समय तो व्यवस्था थी, अब सच्चाई और अनुग्रह है। So we must today divide the word of truth and realize that is not for us today. We can't pray for enemies' destruction. We pray for the blessings. तो हमें समझना चाहिए कि ये पुराने समय की बातें हैं, व्यवस्था के समय की बात थी। हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु उनका नाश कर दे। When Jesus walked this earth, he taught many things. We have to follow all of that, what he taught. और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें शिक्षा दी, उस सारी शिक्षा को हमें मानना है। Sometimes we see how Jesus was a little hesitant to minister to Gentiles. तो कई बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे अन्य जातियों को सुसमाचार देना है, उनकी सेवा करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते थे। When a woman brought her daughter to be healed of demon possession, he says, "I come only for the lost sheep of Israel." और जब वो स्त्री जो अपनी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की को लेके आई तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तो सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। I can't give dogs what belong to children. और मैं बच्चों का खाना जो है कुत्तों को नहीं दे सकता। And what it might have been insult to her, but look at the way she responds. Even the dogs eat the crumbs that fall from the table. और ये तो उसके लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, पर वो किस तरह से उत्तर देती, वो कहती है कुत्ते भी जो है मालिक की मेज से जो गिरा हुआ चूर होता है उसको खा लेते हैं। He was testing her faith and she passed the test. तो यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहे थे और वो परीक्षा में पास हो गई।
He commends them for great faith. और उसकी प्रभु बड़ाई करते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। His own disciples, he actually rebuked them for little faith. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही डांटा कि तुम्हारा छोटा थोड़ा विश्वास है। Her statement was a lesson for the disciples themselves. और ये जो उसकी जो बात स्त्री ने बोली वो तो चेलों के लिए खुद ही एक शिक्षा की बात थी। When he derived the word of truth, they realized his life on this earth was only for the Jews. From the crucifixion thereafter, it became available for all people, all of us Gentiles. और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो उस समय उनका जो वचन था, जो सेवा थी, वो यहूदियों के लिए थी। पर जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए, उसके बाद ये वचन जो है हम सब के लिए, सब अन्य जातियों के लिए भी, सारे संसार के लोगों के लिए है। You must know what's relevant for us today, what's not relevant for us today. तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या चीज हमारे संदर्भ में है, क्या चीज हमारे संदर्भ में नहीं है। The Old Testament sacrifices are no more relevant for us. पुराने व्यवस्था की जो बलिदान थे वो हमारे को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। So Christ made the perfect sacrifice. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बारी होकर सिद्ध बलिदान दे दिया। Today we are called to love people, and that's why we need God's grace to love people. By knowing Him more and more, we will love even enemies. अब हमें परमेश्वर ने बुलाया कि हम लोगों को प्रेम करें। हम जितना प्रभु को ज्यादा जानेंगे उतना ही लोगों से हम ज्यादा प्रेम करेंगे। Matthew chapter 5, 43-44, Jesus says, मत्ती 5:43 और 44 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you heard it said, love your neighbor and hate your enemy. तुम सुन चुके हो कि मैंने कहा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, But I say unto you, love your enemies. और बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। So when you have the gift of discernment, we'll grow in the knowledge of God. तो जब हमारे पास परखने वाली आत्मा होगी तो परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ेंगे। When we grow in the knowledge of God, what happens? तो जब परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? We manifest love. हम प्रेम को प्रकट करना शुरू करते हैं। John 17:26, Jesus says, यूहन्ना 17:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, tell the Father in heaven, वो पिता को जो स्वर्ग में उनसे कहते हैं, प्रभु I have made you known to them, and I will continue making you known to them. मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, that the love you have for me will be in them, and I myself will be in them. कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। So love, kindness, goodness, gentleness all come from knowing God more and more. तो प्रेम, मेल, कृपा, भलाई जो है ये प्रभु को जितना हम जानते हैं उससे उसी तरह से ये भी बढ़ती चली जाती हैं। And to know Him more and more, we should have the gift of discernment and correctly divide the word of God. Because through the word of God, God reveals Himself. और ये फल आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर हो और परमेश्वर ये परखने वाली आत्मा हमारे अंदर हो। जितना हम इस परमेश्वर को जानेंगे उतना ही हम फलवंत होते जाएंगे। I like to encourage you that when you read the Bible and hear the word of God, don't do it just to know the Bible more and more. Do it to know the God of the Bible more and more. तो जब आप वचन पढ़ते हैं, बता रहे हैं, तो बहुत ये इस तरह इसलिए ना पढ़ें कि आप बाइबल को और अधिकाई से जानें, पर ये समझें कि बाइबल का जो परमेश्वर है उसको मैं और अधिकाई से जान सकूं। Mere knowledge puffs up. और खाली ज्ञान जो है वो हमें फुला देता है। Love builds up. और प्रेम हमें बढ़ाता है। Even knowing the Bible very well can make people proud. बाइबल को बहुत अच्छे से जान जाने से ही कई बार बहुत लोग फूल जाते हैं। But knowing the God of the Bible through the Bible will not make us proud. It will make us manifest love, and love means humility. और अगर हम बाइबल के परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे अंदर जो है प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम के जब बढ़ेगा तो हमारे अंदर से नम्रता दिखाई देगी। God revealed Himself to Samuel through His word. परमेश्वर ने अपने आप को शमूएल पर प्रकट किया अपने वचन के द्वारा से। And therefore, when you have the Spirit of God living in us, ask Him to give you discernment to know God more and more, and thereby manifest the love of God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु अपने प्रेम को, अपने इस वरदान को मुझे दे कि मैं तेरे प्रेम को और अधिकाई से जान सकूं, ताकि मैं तेरे प्रेम को और ज्यादा प्रकट भी कर सकूं। The Holy Spirit Himself will pour out the love of God into hearts for us to manifest to others. और पवित्र आत्मा जी खुद वो प्रेम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उंडेल देते हैं कि हम दूसरों को वो प्रेम दिखा सकें। Today we covered actually 6 qualities of the fruit. आज हमने जो आत्मा के जो फल हैं उसके 6 गुणों को हमने आज देख लिया है। And for the 6 we spoke about 2 gifts. और जो इन 6 गुणों के लिए हमने 2 वरदानों की बात करी, Gift of faith and gift of discernment, which already shared last 2 weeks. और विश्वास का दान और परखने वाली आत्मा का दान। इसके ऊपर हम पहले ही कुछ हफ्ते पहले हमने इसमें मनन कर लिया है। Next Wednesday I speak on the 3rd category. और जो तीसरा जो भाग रह गया है उस पे भाई अगले हफ्ते बात करेंगे। Patience, faith and faithfulness and self-control, which come from
another particular gift which I'll talk about next Wednesday. और विश्वास, संयम और धीरज जो है, ये एक दूसरे वरदान से ही हमारे को ये गुण हमारे जीवन में आते हैं, और इसके ऊपर भाई अगले हफ्ते बात करेंगे. Conclusion is, do not negate the gifts of Holy Spirit. We need them. और ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम ये आत्मा के जो फल हैं, इसके गुण जो हैं हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है, हमारे को इसकी जरूरत है. And with that we can manifest all the 9 aspects of the fruit. और अगर ये वरदान हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो इन वरदानों की वजह से हम ये बाकी सारे 9 गुण जो है हमारे जीवन से वो प्रकट हो सकेंगे. By this fruit, the world will recognize we are God's people. और इन फलों से लोग पहचान लेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं. When they come to us, we lift up Jesus and tell them because of Jesus we are who we are. और जब वो हमारे पास आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम यहाँ पे हैं. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.